Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microwave electronics in which today we are going to discuss about two cavity klystron. So in the current lecture we will discuss about klystron and especially two cavity klystron. So what is klystron? Klystron are a special type of vacuum tubes that find applications as amplifier and oscillators at microwave frequencies. So आपको माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में मैंने बता दिया है. So एक्चुअल में क्लिस्ट्रॉन क्या है? क्लिस्ट्रॉन आर स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब. So वैक्यूम ट्यूब का एक स्पेशल टाइप है that find applications as amplifiers and oscillators at microwave frequencies. जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर दोनों की तरह बिहेव करता है. So this is actually a special type of vacuum tube and it find applications as amplifiers and oscillators at microwave frequencies. Its principle of operation is velocity modulation. So velocity modulation के principle पर work करता है. Now, in this way, the device used for amplifying microwave signal is known as two cavity klystron. So वो डिवाइस जो कि माइक्रोवेव सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होती है उसको आप क्लिस्ट्रॉन कहोगे. एंड टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में हम दो कैविटी यूज करेंगे. सो देयर आर टू कैविटी इन टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन. वन इज buncher cavity and one is catcher cavity. So there are two cavity in two cavity klystron and hence it is known as two cavity klystron. So a device used for amplifying microwave signal is known as two cavity klystron or klystron. The klystrons were developed by American engineers Russell and Sigard वेरियन इन 1937. सो 1937 में अमेरिकन इंजीनियर्स रसेल एंड सिगार्ड वेरियन ने क्लिस्ट्रॉन को डेवलप किया था. नाउ ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ क्लिस्ट्रॉन. इन क्लिस्ट्रॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम is utilized for amplifying and generating microwave signal. क्लिस्ट्रॉन में मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम माइक्रोवेव सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए एंड जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज द ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ क्लिस्ट्रॉन. The traveling wave tubes, that is TWT, are also used for amplification of RF signal and have similar application as klystron. तो जैसे हमारा क्लिस्ट्रॉन बिहेव करता है उसी तरह से TWT ये ट्रेवलिंग वेव ट्यूब में भी हम RF सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं. सो क्लिस्ट्रॉन एंड TWT में डिफरेंस क्या होगा? इन ट्रेवलिंग वेव ट्यूब a continuous interaction is maintained between the field and electron beam. So ट्रेवलिंग वेव ट्यूब में फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन को मेंटेन करना होता है. वेयर एज इन क्लिस्ट्रॉन interaction between the two is allowed to occur only at the cavities of the structure. जबकि अगर हम क्लिस्ट्रॉन की बात करें तो क्लिस्ट्रॉन में the interaction between the two means field and electron beam is allowed to occur only at the cavities of the structure. So कैविटी का जो स्ट्रक्चर है केवल वहां पर आपको फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में इंटरेक्शन को मेंटेन करना होता है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एंड क्लिस्ट्रॉन.
In traveling wave tube, a continuous interaction is maintained between the field and electron beam, whereas in klystron, interaction between the field and electron beam is allowed to occur only at the cavities of the structure. Klystron are classified as two cavity klystron and reflex klystron. So klystron are mainly classified into two categories. First one is two cavity klystron and another one is reflex klystron. Here we will discuss only about two cavity klystron. So two cavity klystron. Since the klystron is based on the principle of velocity modulation, अब हमने कहा है कि क्लिस्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन. सो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पर क्लिस्ट्रॉन हमारा वर्क करता है. सो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम फॉर एम्पलीफाइंग द सिग्नल. इसलिए टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी को हम सिग्नल को एम्पलीफाई करने में यूज करते हैं. सो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम फॉर एम्पलीफाइंग द सिग्नल. व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द ट्यूब देयर वेलोसिटी वेरीज. तो जब ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी वेरी करती है. The process of the variation in the velocity of electrons is known as velocity modulation. So what is velocity modulation? Velocity modulation is actually the process of variation in the velocity of the electrons. हमने कहा है कि जब ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी वेरी करती है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के वेरिएशन का जो प्रोसेस है इसको हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं. इट परमिट्स बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल प्रोपेगेशन. सो जब इलेक्ट्रॉन बीम हमारे प्रोपेगेट होगी ट्यूब में से तो मैंने कहा है कि उसकी वेलोसिटी वेरी करती है. सो ये जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है इट परमिट्स बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल प्रोपेगेशन. सो जब इलेक्ट्रॉन ट्यूब में से प्रोपेगेट होगा सो इलेक्ट्रॉन हमारा बंच की फॉर्म में हो जाएगा. सो इट परमिट्स बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन दिस वे द कंबाइंड एनर्जी ऑफ बंच्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड एट द आउटपुट एंड हेंस इट प्रोवाइड्स एन एम्पलीफाइड सिग्नल. सो जब इलेक्ट्रॉन का प्रोपेगेशन हो रहा है देन इलेक्ट्रॉन हमारा बंच की फॉर्म में चेंज हो रहा है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन का बंच है इसकी जो कंबाइंड एनर्जी है ये आउटपुट में ट्रांसफर होती है और इस टाइप से आउटपुट में हमको एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा. सो इन दिस वे वी गेट द एम्पलीफाइड सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द क्लिस्ट्रॉन. नाउ इन क्लिस्ट्रॉन फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. अब क्लिस्ट्रॉन में कौन कौन से प्रोसेस होंगे? वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आरएफ फील्ड. सो रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड से हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मॉड्यूलेट होती है. सो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आरएफ फील्ड. सेकेंड वन इज कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन टू डेंसिटी मॉड्यूलेशन दैट इज इलेक्ट्रॉन बंचिंग. सो ये जो हमारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हुआ है it converts into density modulation or velocity modulation converts into electron bunching and the bunching of electron is known as density modulation. So first one is velocity modulation of electron by RF field और second में क्या हो रहा है conversion of velocity modulation to density modulation. Next one is transfer of energy to RF field. सो यहां पर हमारे पास में बंच इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मॉड्यूलेशन हो गया है. सो ये जो हमारे पास में बंच फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है
ये अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू आरएफ फील्ड। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कैचर कैविटी के पास में कलेक्टर होगा, ये कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। सो देयर आर 4 स्टेप्स in the klystron. First one is velocity modulation of electron by RF field. Second one is conversion of velocity modulation to density modulation. Third one is transfer of energy to RF field. And fourth one is collection of electrons. So in klystron, these 4 process takes place. Now, structure of two cavity klystron. So this is our structure of two cavity klystron amplifier. Here buncher cavity, this one is catcher cavity. यहां पर फॉक्सिंग इलेक्ट्रोड और ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है। सो हीटिंग एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकलेंगे और फॉक्सिंग इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बीम की फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन बीम, दिस इज इलेक्ट्रॉन बंच। तो इलेक्ट्रॉन हमारे बंच के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ये मैंने कहा है। एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी। दिस स्पेस इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पेस। सो बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी के बीच का जो स्पेस है उसको हमने ड्रिफ्ट स्पेस कहा है। एंड हियर वी हैव मैग्नेट सिस्टम। तो यहां पर हमारे पास में मैग्नेटिक सिस्टम है। हियर आरएफ इनपुट और यहां पर आपको आरएफ आउटपुट मिलेगा। हियर वी हैव कैथोड, दीज आर फॉक्सिंग इलेक्ट्रोड, ये हमारा है एनोड। सो एनोड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। कलेक्टर को हमने यहां पर नहीं दिखाया है, कलेक्टर एग्जिस्ट नियर द कैचर कैविटी। सो कैचर कैविटी के पास में हमारा कलेक्टर होगा। सो बेसिकली दिस इज आवर कलेक्टर। सो यहां से आप सिग्नल प्रोवाइड करोगे और यहां से हमको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन इज एक्चुअली कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन। सो कैथोड एंड एनोड का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हमने इलेक्ट्रॉन गन कहा है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। सो इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं। सो हीटिंग एलिमेंट हमारा हीट होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकलेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गन से इमिट होंगे। एंड इलेक्ट्रॉन गन इज एक्चुअली द कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड वन इज बंचर कैविटी और इनपुट कैविटी। सो दिस इज आवर बंचर कैविटी, जहां पर आप आरएफ इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हो। द कैविटी क्लोज टू द कैथोड इज नोन एज बंचर कैविटी। इट मॉड्यूलेट्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। सो वो कैविटी जो कि कैथोड के पास में है उसको हमने बंचर कैविटी कहा है। और ये बंचर कैविटी क्या करती है, इट मॉड्यूलेट्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। सो इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को ये मॉड्यूलेट करेगी या वेरी करेगी। Now, this was our structure of two cavity klystron amplifier. Next one is catcher cavity or output cavity. So this is our catcher cavity. This cavity catches the energy from the bunched electron beam. So buncher cavity से इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी हमारी चेंज होती है और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम है ये बंच की फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन का बंच मिला है। और कैचर कैविटी क्या करता है, कैचर कैविटी कैचेस द एनर्जी फ्रॉम द बंच्ड इलेक्ट्रॉन बीम। सो बंच्ड इलेक्ट्रॉन बीम जो है इससे कैचर कैविटी एनर्जी को कैच करेगा। नाउ ड्रिफ्ट स्पेस। ड्रिफ्ट स्पेस इज एक्चुअली द स्पेस बिटवीन द बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी। सो कैचर कैविटी एंड बंचर कैविटी के बीच का जो स्पेस है उसको हमने ड्रिफ्ट स्पेस कहा है। इट इज द स्पेस बिटवीन द टू कैविटीज
that is the space between the buncher cavity and catcher cavity. So दोनों cavities के बीच का जो space है means buncher cavity and catcher cavity के बीच का जो space है उसको हमने drift space कहा है. In this space there is no field और इस space के अंदर कोई भी field हमारा act नहीं करता है. Now next one is collector. Collector, it is present near the catcher cavity. It collects the electron bunch. अब catcher cavity के पास में collector होगा और ये collector क्या करता है? It collects the electron bunch. So electron का जो bunch होगा उसको ये collect करेगा. In addition to these, there is input coupling loop in buncher cavity and output coupling loop in catcher cavity. So ये जो हमने इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया है इसके अलावा इनपुट कपलिंग लूप एंड आउटपुट कपलिंग लूप भी होता है. इनपुट कपलिंग लूप एग्जिस्ट नियर द बंचर कैविटी एंड आउटपुट कपलिंग लूप एग्जिस्ट नियर द कैचर कैविटी. The whole assembly is kept in vacuum envelope with vacuum sealed coaxial fittings for external connections. तो ये जो हमारी पूरी असेंबली है ये वाली इसको हम क्या करते हैं वैक्यूम एनवलप में सील्ड कर देते हैं. सो द होल असेंबली इज केप्ट इन वैक्यूम एनवलप और एक्सटर्नल में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वी हैव कोएक्सियल फिटिंग्स फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन. सो एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हम कोएक्सियल फिटिंग्स करते हैं इसमें. सो होल असेंबली इज फिटेड और kept in vacuum envelope with vacuum sealed coaxial fittings for external connections. Now operation. अब टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन किस तरह से ऑपरेट करेगा डायग्राम अभी मैंने दिखा दिया था. The electrons ejected from the cathode passes through the gap in the anode into a region between a pair of closely spaced buncher grid. RF voltage exists across it with uniform velocity. So heating element आपके पास में था. heating element से electrons हमारे बाहर निकलते हैं. So these electrons ejected from the cathode. So heating element के through means cathode जो आपका है इसको आप heat करते हो. So heating element is actually cathode. या फिर ये भी हो सकता है कि हीटिंग एलिमेंट के आसपास में आपका कैथोड एग्जिस्ट करे. तो जैसे आप एलिमेंट को हीट करोगे कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है दीज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ गैप इन द एनोड इनटू अ रीजन बिटवीन अ पेयर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड बंचर ग्रिड. तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैं जो कैथोड से निकल रहे हैं ये आपके एनोड के पास में जाते हैं और एनोड के पास में जो गैप है और वो गैप कौन सा है अ रीजन बिटवीन द पेयर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड बंचर ग्रिड. सो बंचर ग्रिड का जो पेयर है उसके बीच का जो रीजन है वहां पर ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं और ये जो हमारा बंचर ग्रिड है यहां पर RF वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस इट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यहां पर RF वोल्टेज हमारा एग्जिस्ट करता है और इसकी वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म होगी. These electrons passes the first cavity gap at zero gap voltage. तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे जो कैथोड से इजेक्ट होकर एनोड की तरफ आ रहे थे अब ये क्या करते हैं These electrons pass the first cavity gap at zero gap voltage. तो जीरो गैप वोल्टेज पर ये फर्स्ट कैविटी गैप को क्रॉस करते हैं और सिग्नल वोल्टेज. सो जीरो गैप वोल्टेज का मतलब सिग्नल वोल्टेज. सो सिग्नल वोल्टेज पर ये फर्स्ट कैविटी गैप को क्रॉस करते हैं एंड हियर देयर इज नो चेंज इन देयर वेलोसिटी. और जब इलेक्ट्रॉन बंच हमारे फर्स्ट कैविटी गैप से क्रॉस होंगे तो इस केस में यहां पर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. But the electrons which passes through the positive half cycle of the gap voltage undergoes an increase in velocity. पर वो इलेक्ट्रॉन जो कि
पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द गैप वोल्टेज, मीन्स गैप वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में से पास होते हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि जीरो गैप वोल्टेज पर पास होते हैं कैविटी गैप से, उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, पर जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द गैप वोल्टेज या गैप वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में से पास होते हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स which passes through the negative half cycle of the gap voltage undergoes a decrease in velocity, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि गैप वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल से पास होते हैं उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सो जो इलेक्ट्रॉन गैप वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल से पास होंगे उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गैप वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल से पास होंगे उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जो जीरो गैप वोल्टेज से पास होंगे उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। As a result of these actions, the electrons gradually bunch together as they travel down the drift space. So, इसके combined effect के कारण जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पेस में से पास होते हैं तो आपके बंच की फॉर्म में इकट्ठे होने स्टार्ट करते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली बंच टुगेदर एज दे ट्रेवल डाउन द ड्रिफ्ट स्पेस। तो ड्रिफ्ट स्पेस में से जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे देन दे ग्रेजुअली बंच टुगेदर। सो ये हमारा डायग्राम था, ये हमारा कैथोड। सो यहां पर हीटिंग एलिमेंट है, सो हीटिंग एलिमेंट जैसे गर्म होगा कैथोड को गर्म करेगा। सो कैथोड से इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट होंगे और ये एनोड की तरफ जाएंगे, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में आगे जा रहे हैं। और मैंने कहा है कि अगर गैप वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल से क्रॉस होंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल से पास होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जीरो वोल्टेज से पास होंगे तो वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से यहां पर वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन होगा, और ड्रिफ्ट स्पेस में से जब इलेक्ट्रॉन हमारे आगे बढ़ेंगे तो बंच की फॉर्म में हमारे चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन बंच मिलेगा। The variation in electron velocity in the drift space is known as velocity modulation. अब ड्रिफ्ट स्पेस में से जब इलेक्ट्रॉन हमारे आगे बढ़ते हैं तो उनकी वेलोसिटी वेरी होती है, और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो वेरिएशन है उसको हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। The electrons emerging from the buncher cavity are velocity modulated due to the presence of RF voltage. So RF voltage की प्रेजेंस के कारण बंचर कैविटी में से जब इलेक्ट्रॉन हमारे इमर्ज होंगे, ये जब इलेक्ट्रॉन बंचर कैविटी में से बाहर निकलेंगे then they will be velocity modulated. While drifting into the drift region, the velocity modulated electrons converts into the density modulation. So drift region में से जब इलेक्ट्रॉन हमारे ड्रिफ्ट होते हैं तो वो जो हमारे वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन थे, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जिनकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी थी, दे कन्वर्ट इनटू डेंसिटी मॉड्यूलेशन, मीन्स इलेक्ट्रॉन हमारे बंच की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। So while drifting into the drift region, the velocity modulated electron converts into the density modulation, and this drifting is known as drift space bunching. और ये जो हमारी ड्रिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन या डेंसिटी मॉड्यूलेशन में चेंज हो जाते हैं, ये बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इसको हम ड्रिफ्ट स्पेस बंचिंग कहेंगे। नाउ दिस इज आवर डायग्राम। सो ये हमारे बंच की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हमारा डेंसिटी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट हो गया है। When these electrons enter into the second gap, that is Catcher grid, अब
ये जो हमारे बंच्ड इलेक्ट्रॉन हैं या डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन है वो कैचर कैविटी में पहुंचेंगे। when these electrons enter into the second gap, that is catcher grid, during the retarding phase of RF field of the catcher cavity, then most of the electrons lose or transfer their kinetic energy in crossing the second gap to the RF field of catcher cavity. So जब ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड गैप या कैचर ग्रिड में एंटर करते हैं, देन कैचर ग्रिड के आरएफ फील्ड के रिटार्डिंग फेज के कारण ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। सो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या तो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे या फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस और ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी इन क्रॉसिंग द सेकेंड गैप to RF field of catcher cavity. In this way, the RF input signal of the first cavity resonator is amplified at the second cavity resonator. So, जो आपने फर्स्ट कैविटी रेजोनेटर मीन्स बंचर कैविटी रेजोनेटर को जो RF सिग्नल दिया था, ये RF सिग्नल हमारा सेकेंड कैविटी रेजोनेटर मीन्स कैचर कैविटी रेजोनेटर पर जाकर एम्पलीफाई हो जाता है। So in this way, the RF input signal of the first cavity resonator is amplified at the second cavity resonator. Finally, emerging electrons with reduced velocity from cavity resonator are collected by the collector. अब कैचर कैविटी रेजोनेटर में एनर्जी कलेक्ट कर ली है, मीन्स बंच इलेक्ट्रॉन जो थे उसने अपनी एनर्जी कैचर कैविटी रेजोनेटर को प्रोवाइड कर दी। सो रिड्यूस्ड वेलोसिटी के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं। सो द इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन विथ रिड्यूस्ड वेलोसिटी फ्रॉम कैविटी रेजोनेटर आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर। सो यहां पर हमारा कलेक्टर होगा, कलेक्टर लाइज नियर द कैचर कैविटी। सो कैचर कैविटी ने बंच्ड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को कलेक्ट कर लिया है या गेन कर लिया है, या फिर हम ये कहें कि बंच्ड इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी कैचर कैविटी ग्रिड को या कैचर कैविटी रेजोनेटर को ट्रांसफर कर दी है और रिड्यूस्ड वेलोसिटी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। Now, characteristics of two cavity klystron. अब two cavity klystron की characteristics कौन कौन सी हैं? It is capable of operation to frequencies in excess of 100 gigahertz. So 100 gigahertz frequency की frequency को ऑपरेट करने में कैपेबल है। As an amplifier, it offers pulse and output power with medium bandwidth about 2 to 15% and high gain 15 to 70 decibel. So एम्पलीफायर के फॉर्म में ये आउटपुट पावर विथ मीडियम बैंडविड्थ एंड हाई गेन ऑफर करता है। सो मैंने कहा था कि टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन हमारे एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। सो एज एन एम्पलीफायर इट ऑफर्स पल्स एंड आउटपुट पावर। सो पल्स एंड आउटपुट पावर प्रोवाइड करेगा और ये जो हमारी आउटपुट पावर है इसकी जो बैंडविड्थ होगी 2 to 15% बैंडविड्थ होगी एंड इसका जो गेन है वो हाई है, वो क्या है 15 to 70 डेसिबल। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स एफिशिएंसी इज अबाउट 40%। सो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की जो एफिशिएंसी है वो 40% होती है। इट्स पावर गेन इज 30 डेसिबल। सो 100 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज तक ऑपरेट होता है। इसका आउटपुट पावर मीडियम बैंडविड्थ में एग्जिस्ट करता है और इसका गेन हाई है जो कि 50 to 70 डेसिबल है। एफिशिएंसी इसकी 40% होती है एंड पावर गेन 30 डेसिबल होता है। सो हियर वी एंड आवर सेशन।
in the current session we have discussed about two cavity klystron. So goodbye.